ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੈਠ ਕਰਾਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਉ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾ ਤਉ ਜਰ ਦੁਲਦੇ ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੇ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਲੰਗੜੇ, ਐਸੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਔਸਤਨ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਦਾ। ਇਹ ਅੰਧਾ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ, ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਣ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई है। देख सकिए अखां ही कोई नहीं, दृष्टि कोई नहीं। और जिहड़ी दृष्टि है, जिहड़ियां अखां हैगियां ने, संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। पदार्थ दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं। परिवार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। देखबे को ना दृष्ट,
ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को न सुरत न सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सकां कुछ कह सकां, जबान ही कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल सुन सकां, कानी कोई नहीं, बहरा। भाई साहब भाई गुरदास जी, बहरा। हे गुरु तेरे बोल सुन सकां, मेरे कोल ਕੰਨ नहीं ने, और ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। मैं विखे नाद सुन सकदा, तेरा गीत नहीं। मेरे कोल कंन ही कोई नहीं, तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका, मेरे कोल जबान ही कोई नहीं। मनुख कोल जिहड़ी जबान है, वध तो वध इहदे बोल पहुंचते ने पुत्रां तक, मित्रां तक, परिवार तक। चलो किसे किसे दे बोलों च बरकत आउंदी, उन्हां दे बोल राज दरबार तक भी पहुंच जाते हैं, राज घरानियां तक भी पहुंच जाते हैं। पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हां दे बोल निरंकार तक पहुंचते हैं। जाका कहा दरगे चले, जिहदा कहा होया दरगाह दे च भी चलदा है, जिहदा बोलिया होया परमात्मा दी दुनिया च भी चलदा है, जिहदा बोलिया होया परमात्मा भी सुनदा है, ईश्वर भी सुनता है। जाका कहा दरगे चले। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरे तक अपने बोल पहुंचा सका, जबान ही कोई नहीं, रसना ही कोई नहीं। तेरे बोलां नूं सुन सका, मेरे कोल कंन ही कोई नहीं। कैलीफोर्निया ਦੇ भ्रमण करदਿਆਂ ਹੋਇਆ मैं गुरुद्वारिਆਂ ਚ देख के दंग रह गया। 10 मिनट किधरे कीर्तन ਦੇ ज्यादा हो जान, बैठना बड़ा औखा हो जाता है। 2-2 घंटे लंगर हार ਦੇ गप्पां मारते रहणगे, कोई टाइम ही नहीं देखता, वक्त ही नहीं देखता। फिर मैनू उत्थे भाई गुरदास जी की पंक्ति चेते आउंदी है, हे प्रभु तेरे बोल सुन सका, मेरे कोल कंन ही कोई नहीं। तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका, मेरे कोल जबान ही कोई नहीं। कहदे को ना सुरत न सरवन सुनवे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए मन उन मन लेवल आई है। हे प्रभु जो गुरमत है, जो तेरे विचार ने, तो मेरा मन कबूल नहीं करता, नहीं मनता। कहता कह पिया, मन नहीं मनता। और जिहड़े मेरे विचार ने, जो मेरी सोचनी, वो तैनू कबूल नहीं, वो तैनू परवान नहीं। बड़ी कीमती गल कह दी है भाई गुरदास। जो तेरी सोचनी है हे गुरु, ये मैनू कबूल नहीं, मैं नहीं मनता। जो मेरी सोचनी है वो तैनू कबूल नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, संबंध किवें जुड़े। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन न लेवलाई है। जो गुरु दी मत है, जो गुरु दी सोचनी है, जो गुरु दे विचार ने, मन नहीं कबूल करता। और जो मन दी मत है, जो मेरी सोचनी है, जो मेरे विचार ने, वो गुरु नूं कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े, विचारां दी सांझ ही नहीं बनती। गुरु दे विचार मैनू कबूल नहीं, मेरे विचार गुरु नूं कबूल नहीं, मेरे विचारां नाल गुरु सहमत नहीं है, और गुरु दे विचारां नाल मैं सहमत नहीं हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी, मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए।
हे प्रभु जगत ਦੇ कोई टुंडा होवेगा, कोई लंगड़ा होवेगा, कोई अंधा होवेगा, कोई बहरा होवेगा, कोई गूंगा होवेगा, पर भाई गुरदास इत्थे कमाल कर देन, मैं ते अंधा भी हाँ, बहरा भी हाँ, गूंगा भी हाँ, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी हाँ। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बहु नायक की नायका कहाई। किवें मैं तैनू कबूल हो सकदा। अंग अंग भंग, सारे अंग टुटे पए ने, भंग ने, ना पैर ना हथ, ना अखां ना कन, ना जबान। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बहु नायक की नायका कहाई। सारे अंगां दी अपनी एक महानता है, पर रस्ते नूं वेखण वास्ते अखां चाहीदियां ने, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहीदे ने। कुछ धार्मिक विद्वान ऐसा भी कहते हैं, अगर पैर हैगे ने, शरदा हैगी है, भावना हैगी है, ज्ञान नहीं है, वध तो वध भटकेगा, और भटकदे भी कई दफा पहुंच जाते हैं। चलते ते पे किसी दिन भटक भटक के भी पहुंच जाएंगे। हुणे थानू भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी, जो बहुत सोहणे आलम ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना बारे दस रहे सन। भगत सूरदास ये बिंद्राबन तो चलिया सी, इस शौक नाल मेरे बोल भी गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज होवन। उहदी एक पंक्ति दर्ज है सारंग राग दे विच, अंधा सी नेत्रहीन, हुण बिंद्राबन तो अमृतसर तक पहुंचे किवें, पर उसका हौसला देखो, लाठी लैके चल पिया, पुछदा ही पुछदा, किधरे भटक जांदा सी, लोकी रस्ते ते पा देंदे सन। ये मतवातर दिन भर चलदा सी, रात नूं कदी किसे रुख थले, कदी किसे पिंड विच कट लैंदा सी। भटकदा भटकदा 3.5 महीनिਆਂ ਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पहुंच गया, अखां कोई नहीं, पहुंच गया। सतगुरु के चरणों से मत्था टेकिया, मस्तक छुपिया नहीं रहिंदा, है भगत है, भावना नाल भरिया होया। सतगुरु ने मौका दिता, सुना भाई, पर यह संगीतकार भी सी, राग दीआं बारीकियां नूं भी जानदा सी। जद भी किसी दे अंदर परमात्मा प्रगट भी हुंदा है, गीत बन के आउंदा है, संगीत बन के आउंदा है, एवें नहीं गीता प्रगट होंदी। धन गुरु नानक दे अंदरों अकाल पुरख प्रगट होंदे ने, गीत बन के, संगीत बन के। वकत दा राग गांदे ने गुरु नानक, वकत दी रागनी गांदे ने। मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, बाणी मरदाने ते नहीं आई, गुरु नानक ते आई है। गाउंदे गुरु नानक आप ने, मरदाना सिर्फ रबाब वजांदा, साज वजांदा है। वकत दा राग गांदे ने, वकत दी रागनी गांदे ने गुरु नानक। कदी सोरठ पे गांदे ने, कदी मलार पे गांदे ने, कदी भैरो गा रहे ने, कदी मारू गा रहे ने, कदी मांझ गा रहे ने, कदी आसा गा रहे ने, कदी गौड़ी गा रहे ने, कदी सही राग गा रहे ने। वकत दा राग गांदे ने, वकत दी रागनी गांदे ने। कीर्तन सुनना होवे ते फिर मरदाने तो सुन लैंदे, पर जद बाणी नाजल होंदी है ते गुरु नानक नूं नाजल होंदी है, और वो बाणी नाजल होंदी है गीत बन के, संगीत बन के। भावें चौक दे च बैठ के रविदास सारा दिन जुतियां ही गंढदा है, पर परमात्मा जद उसके हिरदे चों भी प्रगट होंदा है, गीत बन के, संगीत बन के। रविदास की सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। हैरानगी होंदी है, गंढदा ते जुतियां, इनू संगीत कित्थों आ गया। भावें दिन भर खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े ही बुनदा है, पर जब रब्बी कलाम अंदरों प्रगट होंदा है, गीत बन के, संगीत बन के। कबीर दी सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। सारा दिन भावें कपड़ियां नूं ही छिंबदा है, नाम देव छिंब है। लोकी शूदर कहंदे ने, मंदिर तो ते मार मार के कढ़ दिता गया सी,
जिस मंदिर चों मार मार के कढ़ दिता गया सी, दास ने वह मंदिर देखिया है हजूर साहब तो सिर्फ 40 मील की दूरी ते। उस कस्बे का नाम है औंढा, जिथे मंदिर है। बड़ा बुरी तरह मारिया इसनों ब्राह्मणा ने। तू शूदर है ते मंदिर विच किस तरह आ गया, क्यों आया? शूदर की असी छाया नहीं लेंदे, तू छाया नाल मंदिर भ्रष्ट किया, सारा मंदिर सानू धोना पेगा। तू क्यों आ गया, किस तरह आ गया? मारे। और गिला मिठा जिया करदा है नाम दे, सूद सूद कर मार उठायो, कहां करो बाप बैठला। हे मेरे बाप, हे मेरे बिठल, मैं की करा, मैनू शूदर शूदर आख के मारिया इन्होंने। शूदर शूदर आख के मैनू धक्के दिते ने इन्होंने। पर ये मंदिर के पिछे जा बैठा, लंबी चौड़ी गाथा ना अर्ज करा, पिछे जा बैठा। पर गजब दी गल, फेर दिया नामे को देवरा पंडियन को पिछवाड़ना। मंदिर का दरवाजा मूर्तियां का मुंह नामदेव की तरफ हो गया। अजे तक मंदिर उसे तरह ही है, अजे तक। गालबन में थानू 35 साल पुरानी गल दसा, कटक दे मैं किधरे कह बैठा, गुरु नानक देव जी ने हाजियां दे मन फिरा दिते, मक्का नहीं फिरिया। 35 साल पुरानी गल कर दो। तर्क बुद्धि मेरी बहुत ज्यादा सी, गल गल ते तर्क करना ये मेरी आदत सी। मैं कहा हाजियां दे मन घुमा दिते, दिमाग घुमा दिते, सोचनी फेर दी। बिल्डिंगां नहीं घुमदियां होंदियां, पत्थर दा मक्का नहीं घुमदा हुंदा। उन्हां दिनां च दास बाबा बलवंत सिंह कोल गुरबाणी व्याकरण पढ़दा सी, वो भी बैठे सन। जद कमरे च आए, जिंदगी च मैं पहली दफा ताड़ना ते एक गाल भी सुनी, नहीं तो मैनू अज तक किसी स्कूल दे मास्टर ने भी न ताड़ना की सी न मारिया। ते मां बाप का एक लोता लड़का होने करके उन मैं लाड नाल भरिया, लेकिन पहली दफा कड़कदी हुई गाल भी सुनी। आख्या मूर्खा तू ये की आख्या, रहिंदा मेरे नाल है, पढ़दा मेरे कोल है, की आख्या? मैं आख्या मैं की आख्या, तू ये आख्या मक्का नहीं घुमिया। मैनू कहने लगे फिर भाई गुरदास गलत पे कहते फिर फिरिया मक्का कला दिखाई, तू ठीक है भाई गुरदास गलत है। मैं कहा भाई गुरदास के कहने का भी यही अर्थ होगा, दिमाग घुमा देता। तीजे दिन उन्होंने कथा की समाप्ति की थी, कहने लगे हजूर साहब चलना है। हजूर साहब का कोई प्रोग्राम नहीं सी उदों। उतों वैद्यनाथ धाम जाना सी, फिर कलकत्ते जाना सी, फिर पटना साहब पहुंचना सी। अचानक कहने लगे हजूर साहब जाना। मैं कहा ठीक है। औरंगाबाद उतरे, उतों टैक्सी पकड़ी, हजूर साहब ले। हजूर साहब 40 मील रहिंदा, रस्ते दे कस्बा पैंदा औंढा। ड्राइवर नूं कहण लगे इधर मुड़। मैं कहा बाबा जी हजूर साहब तो उस पासे सीधा रोड ते हो जा रहे हैं। कहने लगा तेरी अकल फिरानी है, इस वास्ते आया। औंढे गए, मंदिर देखा। कहने लगे हुण देख इस मंदिर नूं देख, ये रबड़ का बनया होया कि पत्थर का बनया है मंदिर? ये खिडौना है कि असली मंदिर है? पहाड़ नूं तराश के बनाया गया, फिरिया होया है कि नहीं? मंदिर का मुंह दूजे पासे, मूर्तियां का मुंह दूजे पासे। और ब्राह्मण आप साखी सुनाते हैं। फिर जिथे बाहर बैठ के कीर्तन किया सी नामदेव ने, उत्थे हुण थड़ा भी बना दिता है। हुण ब्राह्मण मनते हैं, हुण ब्राह्मण भी उस थड़े नूं मत्था टेकदा। देख के मैं फिर भी बाबे उन्होंने ये आखी अकल तो अगे की गल है। मैनू कहने लगे अकल तो अगे की गल है तो सच,
पर तू बेअकली नाल कह रहे हैं। ये भी अजे तक मैनू याद है। ये गल तो ठीक है कि अकल तो अगे की गल है, परमात्मा अकल तो अगे की गल है, प्रभु का रस अकल तो अगे की गल है, परमात्मा की होंद अकल तो अगे की गल है। पर जिहड़ा तू कह रहे हैं बेअकली नाल कह रहे, तू अकल तो अगे नहीं गया। अगर अकल तो अगे चला जाता तो शायद खेड बन जाती, तेरी गल समझ च आ जाती। फिर जब मैं भाई नंदलाल नूं पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्नता के घर दे आए, बख्शिश के घर दे आए तो कहने लगे, नंदलाल बहुत खुश हाँ तेरे ते, तू बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता। अज मैनू होर खुशी होवेगी, तैनू कुछ दें, तैनू कुछ दें जो बहुत प्यारा होवे, बहुत प्यारा होवे, देण नूं जी करदा है। जिहदे नाल बड़ी करड़ी दुश्मनी होवे, उहदा ते कुछ खो लैण नूं जी करदा है। जिस नाल करड़ी दुश्मनी होवे, जी करदा है इहदा सुख खो लईए, इहदी इज्जत लुट लईए, इहदा मान सन्मान खो लईए, मौका लग जाए इहदी जिंद जान खो लईए। दुश्मनी है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, देण नूं जी करदा है। सुख दे दईए, आराम दे दईए, सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो अपनी जिंद जान दे दईए। सतगुरु कहने तू मैनू बहुत प्यारा लगता, बहुत प्यारा लगता। तेनू अज मैं कुछ देना है, क्योंकि दे के मैनू खुशी मिलेगी। पर ऐसा ना होवे मैं जिहड़ा तैनू देवां वो तेरी लोड़ ना होवे, तेरी मंग ना होवे। इस वास्ते तू मंग ते मैं दें, जो तू मंगे वो मैं देना। पता है नंदलाल ने की आखे, महाराज इस दर ते पहले मंगता ही आया सी, मंगां नाल भरिया होया, हर वक्त मंगां ही सन, हर वक्त कामनावां ही सन। बादशाह जद मैं इस दर ते आया सी, मंगते दी तरह आया सी, मंगां सारियां खत्म हो गईयां, अज मैं बादशाह हो गया, अज आप कहंदे हो मंग लो, अज आप कहंदे हो मंग लो। गदाए कूवे तोरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनत हो व ज़ौके कज कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, जिहड़ा एक दफा थोड़ी गली चों लंघ जाए वो दो जहाना की बादशाही ठुकरा देना है। तो मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किहड़ी किस चीज की कमी, मैं ते बादशाह बनया बैठा थोड़ी संगत करके, थोड़े चरना च रहन करके। अज आप कहंदे हो कुछ मंग लो, कुछ मंग रही नहीं। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदे ने, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। दुआ कहंदे ने अरदास नूं। अमीर खुसरो कहंदे, खुदा हुण ते मेरे हाथ ही नहीं उठते कि मैं अरदास करा ते तेरे कोल कुछ मंगा। जिस दिन दा तैनू मंगया सारियां ही मंगा मिट गईयां। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इस तरह की अरदास करन तो बाद हुण होर अरदास करन नूं जी नहीं करता, होर कुछ मंगण नूं जी नहीं करता। पता है सतगुरां ने की आख्या, नंद लाल फिर साडी खुशी ते यही है, तैनू कुछ देईए। चल साडी खुशी लई मंग ले, साडा मन खुश हो जाए। माता प्रीत करे पुत खाए, मां नहीं खा रही पुत खा रहा है, पर मां खुश हो रही है, खांदा ते पुत पे है। माता प्रीत करे पुत खाए, खुश ते पुत्र हो रहे हैं, खांदा ते पुत्र पे है, स्वाद ते पुत्र नूं आ रहा है, पर खुश मां हो रही है। सिख दी खुशी कई दफा गुरु दी खुशी बन जाती है।
ਨੰਦ ਲਾਲ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈ ਦਿਲਮਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਰੱਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈ ਦਿਲਮਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਦਰਗਲੂ ਅਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਤੌਕ ਦੇ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਟੇ ਨੂੰ ਤੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਨੇ ਤੌਕ ਬਣਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੇ ਜੂਝੇ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਗ ਜਾਈ। ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੀ ਇਹ ਆਮ ਵਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਵ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ। ਲਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਲਾਮ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਇਤਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜੇ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ, ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤਲਾ ਆਇਆ ਤਿਤਲਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਗੁਲਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈ ਦਿਲਮਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਇਲਾਹੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈ ਦਿਲਮਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਦਰਗਲੂ ਅਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਤੌਕ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਦਰਗਲੂ ਅਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਤੌਕ ਦੇ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬੇਦੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
नज़रां ते मैलियां आउंदियां ने, अखां की इतनी परवाह नहीं करता कि अखां इतनियां मैलियां, और अखां की मैल बड़ी दूर तक जाती है। अखां की मैल सिर्फ मनोविग्यानक या थोड़े जिहा संत भगतां नूं दिखाई देती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देख लिया सी, ये जो सारा दिन पानी पिलांदा है, सेवा करता है, ये सेवक नहीं है, भगत नहीं है, ठग है। यदि अखां दस रही सज्जन ठग है, सिर्फ दिखाई देंदा सज्जन, सिर्फ नाम इसका सज्जन है, ये ठग है। यदि अखां दसदियां पिया, यदियां नज़रां दसदियां पिया, की होया हत्थां नाल सेवा करदा पिया, अखां मैलियां, मेलियां नज़रां नाल सेवा करदे मैं गुरुद्वारियां च भी देखे ने, गुस्ताखी माफ, औखे ना मेलियां अखां वाले मैं मंदिरां विच भी सेवा करदे हुए देखे, अखां ते मैलियां ने, उन सेवादार ने, अखां ते मैलियां ने। इन्हां अखां नूं मनुख इतना संभाल के नहीं रखता कि मैलियां ना होण। हाथ भी धो लैंदा, पैर भी धो लैंदा, अखां भी साफ कर, इन्नियां मैलियां, इतनियां मैलियां। सियाणे कह दिंदे ने दी अख मैली है, ठीक नहीं है। सतगुरु नानक देव जी महाराज इस नूं इंज कहंदे ने, दृष्ट विकारी बंधन बांधे हऊं तां के बल जा। ਜਿਹੜਾ अपनी अखां नूं धो लैंदा है, निर्मल कर लैंदा है, सब कुछ साफ दिखाई देंदा है, मैं उस तो सदके जाना, कुर्बान जाना। गुरु नानक देव जी, मैं उस तो बलहारने जाना। है लमकाई गया ना। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए विदे, है मेरे इलाही वो अखां दे ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा नूं देख सकदियां। फिर दूसरी पंक्ति पे कमाल कर देता है, या इलाही चश्मे बीना ए विदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए विदे। इस सिर दे वो इश्क दे, वो शरदा दे, वो भावना दे कि सारे कह दिन नंद लाल पागल है, पागल है, पागल है। ऐ मेरे गुरुदेव, अजे ते लोकी मैनू ज्ञानी कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, कवि कहंदे ने, शायर कहंदे ने, आलम फाजिल कहंदे ने। मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। भगत पागलों जैसे दिखाई देंदे ने, ये भी मैं अर्ज करा आम बंदियां नूं। क्यों? उन्हां दा रहन सहन, तर्जे जिंदगी जगत नाल तालमेल नहीं खांदी। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, ते जिन्हां दा जोड़ आ जांदा भगत कहण दी लोड़ भी की है, संत कहण दी लोड़ भी की है, फकीर कहण दी लोड़ भी की है। खास दृष्टि होवे ते पता चल जांदा इन्हां दी तर्जे जिंदगी मेल नहीं खांदी। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, संसार विच रहिंदे होए संसारियां दी तरह दिखाई देंदे होया संसारी नहीं आउंदे। एक गाथा है पंचदशी दे विच, एक बोध भिक्षु जो अठे पैर ध्यान साधना च रहिंदा सी, रस्ते सड़क च बैठा, आंदे जांदे जो लोकी उसनूं भिक्षा दे देंदे सन, उस नाल उसदी उपजीविका चलदी सी। वक्त दा राजा भी रोज रथ ते बैठ के लंघदा सी, राज महलां तो राज सभा विच जांदा सी, उसे ही रस्ते तो। मन विच राजे दे ख्याल आया, भजनीक बड़ा है, लिवलीन रहिंदा है, हर वक्त सुरत दी एकाग्रता दे च रहिंदा है, इनू अपने महलां च बुला लें, दावत दे दें, कुछ दिन साडे महलां च रवे, 2-4 दिन, 8-10 दिन। ये मन विच सोच लिया है बई राज सभा तो वापसी ते आंदियां प्रार्थना करांगा, कवांगा। वापस आ रहे हैं, झुग्गी कोल इसने रथ रुकवाया, उतरे, हाथ जोड़ के आखे, संत जी कुछ दिन साडे ग्रह दे च रहो, कुछ दिन। वो साधु एकदम खड़ा हो गया, कहना चलो।
ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਿਤੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਬਿਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚਲੀਏ ਮਹਿਲਾਂ ਚ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸਦੀ ਅੱਧੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਰੱਥ ਚ, ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਲਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਨ ਲੈ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਕਵਾਨ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ, 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਪਲਵਸਤੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। 30-40 ਪਿੰਡ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਲਬਨ 3-4 ਫਰਲਾਂਗ ਜਦ ਚਲੇ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਤਨਾ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। 2 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਇਤਨਾ ਕਦੀ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਰ ਚਲਦਿਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। संत कहने लगा तेरे ते मेरे च यही फर्क है, तेरे महल पिछे ने मेरे अगे ने, तेरा सब कुछ पिछे है, मेरा सब कुछ अगे है। जिथों तेरा सब कुछ खत्म होता है उसे जगह तो मेरा सब कुछ शुरू होता है। जा तेरे महल छड़े कपड़े उतार के परे सुट दिते, आपां चले अगे, तो तेरे मेरे च यही फर्क है। तू अगे नहीं आ सकता, पिछे मुड़ सकता है, असी पिछे मुड़दे ही नहीं आते, अगां जांदे आंदे। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज इह्या वार, बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं क्यों पिछे सुरत नूं मोड़दा है? बंदा आ गया गुरुद्वारे, सुरत पिछे कारोबार जा रही है, कम से कम 1 घंटे लई ते सुरत नूं अगे रख, शब्द दे नाल जोड़, एक अद्धे घंटे लई ते कर। इत्थे आके भी तेरी सुरत पिछे परिवार दे, कारोबार दे, घर दे सुरत पिछे जाती है, अगे नहीं जाती। साहिब कहते हैं अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, पिछे ते साडा संसार है, अगे निरंकार है। पिछे ते साडा परिवार हो सकता है, करतार ते अगे। पिछे ते साडा कारोबार है, निरंकार दी दुनिया ते अगे। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज इह्या वार, बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं ऐ मेरे पातशाह, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ओ प्यार दे, ओ इश्क दे, ओ भावना दे, ओ शरदा दे, कि एक दफा सारे कह दिन नंद लाल सुदाई हो गए, पागल हो गए। महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहते हैं, शायर कहते हैं, विद्वान कहते हैं, आलम फाजल कहते हैं, पंडित कहते हैं, महाविद्वान कहते हैं। मैनू किसी ने पागल कहना नहीं शुरू किया। हैरानगी की गल, चोटी का सियाणा मनुख ये कह रहे हैं। इस दौर के श्रद्धालु होना बड़ा औखा हो गया। बहुते श्रद्धालु नूं लोकी पागल कहने लग पैंदे, बहुते श्रद्धालु नूं लोकी भोला कहने लग, औखा होना। निक्की निक्की गल ते शरदा टुट जाती है बंदियां दी, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां। हजारां दफा रब की कथा सुनिए, गुरबाणी की विचार सुनी होवे, किते माड़ी जिहां शरदा बनदी है, इक्को ही मनुख दे किधरे 2 बोल अशरदा बारे सुन लईए, शरदा टुट जाती। की शरदा है मनुखां दी? कुछ भी नहीं, कच्ची कंध ते खड़ी है। तो लवज बनी बनाई शरदा नूं तोड़ के रख देंदे। इत्थों ही पता चलता है मनुख कोल शरदा एवें कच्ची कंध वर्गी है, कलरी कंध वर्गी है, कुछ भी नहीं, माड़ा जिहा धक्का दिता ते गई। मैं फिर दोहरावां, इसका खुलासा मैं कल करने की कोशिश करांगा, समा हो गया। रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिए, दृष्टि चाहिए, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहिए। दृष्टि ज्ञान है, समझ है, अकल है, शरदा पैर ने, भावना पैर है, प्यार पैर ने। पैंडा प्यार नाल तय हुंदा है, शरदा नाल तय हुंदा है, अकल नाल नहीं। अकल नाल पैंडा दिखाई देंदा है, मंजिल दिखाई देंदी है। हुण मैं फिर अर्ज करां, पैर नहीं ने, शरदा बिल्कुल नहीं है, भावना बिल्कुल नहीं है, प्यार बिल्कुल नहीं है। भावें चोटी का ज्ञानी होवे, उरार ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं, हिरदा भी कठोर होगा, बड़ा कठोर होगा। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने जो चोटी के विद्वान सन, शूदरां लई मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। बड़ा चोटी का विद्वान काजी सी, सूबा सरहंद दे कोल, उसने बुलाया सी फैसला करने वास्ते मासूम बच्चों का। काजी का फितवा ते लाजमी सी, बगल दे कुरान, कुरान पूरी कंठ, हाफिज सी, अर्थबोध आउंदा सी, हदीसां पढ़ांदा सी, बड़ा विद्वान चोटी का, हथ दे तस्बीह। जब सूबा सरहंद ने यह आख्या, इस्लाम यह कहता है, मोहम्मद साहब यह कहते हैं कि तेरे हथों किसी नाबालग बच्चे का और औरत का खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा। तो वह नवाब काजी नूं कहंदा की करिए, की करिए।
इन्हां बच्चियां दा की करिए। काजी कहंदा खून डोलण दी की लोड़ है, खून नहीं डोलदे, इन्हां नूं जिंदा ही दीवार दे चिण दो, गल खत्म। एक काजी फैसला करदा है, बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान, बड़ा पंडित, बड़ा पढ़ा लिखा, रस्ते ते चलण दी तौफीक कोई नहीं, शरदा ते है ही कोई नहीं, भावना ते है ही कोई नहीं, प्रेम ते है ही कोई, संबंध ते प्रेम नाल जुड़दे ने। बड़े बड़े ज्ञानी कोरे रह जाते हैं संबंध नहीं, बड़े बड़े दार्शनिक फिलासफर चिंतक बुलारे लिखारी में पत्थर दिल देखे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिए ने, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहिए ने। हुण मैं फिर अर्ज करा, पैर नहीं है ये तो चल ही नहीं सकता, उत्थे बैठा रहेगा, दूजे दे पैरां नाल नहीं चलिया जाता। पर पैर हैगे ने, अखां नहीं। यकीन जाने भटकदा भटकदा किसी दिन पहुंच सकता है। सूरदास अमृतसर पहुंच गया सी, गुरु दे चरनां च पहुंच गया सी, भटक भटक के बाहर दी अखां इसदे कोल नहीं सन। जे बाहर दी अखां नहीं है तो बाहर भटक भटक के मनुख बाहर दा रस्ता तय कर सकता है। चलो अंदर दा ज्ञान परमात्मा दा नहीं है, सूझ समझ परमात्मा दे नहीं है, सिर्फ भावना प्यार ते शरधा है, यकीन जानो पहुंच जाता है, मनुख पहुंच जाता है। इस नूं मैं फिर तुहाडे सामने खोलांगा। 4 दिन मैं होर हाजरी भरनी है, रात देवकता 8 ਤੋਂ 9 तुहाडे चरण परसांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ प्यार की सौगात पावन, शरधा की सौगात पावन, ईश्वर का भरोसा ते भावना पैदा होवे। ना भी होया तो ज्ञान कोई बहुत वड्डी गल नहीं, शरधा पहुंचा देंदी, भावना हिरदे नूं रस नाल भर देंदी है, प्यार हिरदे नूं अंदौलत कर देंदा है। और साफ कह दिता कलगीधर पातशाह, साच कहो सुन लेहो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुण ए तो वृंद बरात जनावर, एक बैराग बिना सब ठीक है। भरतरी कहता है बंदा ज्ञानी है, दानी है, बड़ा कुछ करता है, प्यार नहीं है, इहदा सब कुछ इंज है। वो बरात जिहदे च लाड़ा ही कोई नहीं, लाड़ा ही कोई नहीं। इस बरात दे की मैंने रख दी बरात, लाड़ा ही कोई नहीं। एक बैराग बिना सब ठीक है, एक रब्बी प्यार तो बिना सब फिक्के ने। सारा ज्ञान फिक्का, सारा ध्यान फिक्का, सारी सेवा फिक्की। दान दे चों भी हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी झलक ने पैदा होएगी। साहिब रहमत करन, साडी शरदी जो है झोली नूं शरधा नाल भरन, भावना नाल भरन। इहदा खुलासा फिर भुल चुक दी क्षमा फतेह प्रणाम करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।